होता है ऐसा कुछ सब. So we started with the analysis table of traditional approach, right? Tell me, what are the rules, modern rules and traditional rules? 4 modern, 3 traditional. याद है आपको? Tell me, Raj, rule for personal account. Personal account. Credit the giver and debit the receiver. Debit the receiver, credit the giver. Rachi, real account. Debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. Jia Patel, nominal account का rule. वाह. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Mahi, modern rule for assets. If it increases then debit and if it decreases then credit. If it increases then debit, decreases then credit. Khushi, liability rule. If it increases then credit and if it decreases then debit. Increases then credit, decreases then debit. Manan, expenses का rule. Increases and debit, decreases and credit. Increases then debit, decreases then credit. Jia, income का rule. If increases then credit, If increases then credit and decreases then debit. Navya, capital. if increases capital increases, decreases drawing. So capital increases then Credit. credit and decreases then debit. No drawing. बढ़िया. एक टेबल हमने किया हुआ था, हमने ड्रॉ किया. मैंने बोला था 3 साइज का ड्रॉ करके आना है. ठीक है. टेबल नंबर 2 ले लेते हैं. टेबल नंबर 2 भी हम लोग ट्रेडिशनल से सॉल्व करने वाले हैं. टेबल नंबर 2 ट्रेडिशनल अप्रोच. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. टेबल नंबर 2 ट्रेडिशनल अप्रोच. फर्स्ट वन. See what are they given? Ajay commenced business with rupees 90,000. Ajay commenced business with rupees 90,000. Name of Dheer Soman. Tell me, what are the 2 accounts? Ajay commenced business with rupees 90,000. Business start with Cash account and capital. very good. Cash and capital. Cash account and capital account. Did all of you get that? Cash account and capital account. क्योंकि अजय ने स्टार्ट किया. अभी अजय कौन हुआ? अजय might have been the owner. जेठालाल गड़ा. उसने स्टार्ट किया. So you cannot write Ajay's account. Okay, you can write Ajay's capital or you can write simply capital. क्योंकि ओनर जो होता है, ओके, जो ओनर होता है वो बिजनेस में 2 नाम से पहचाना जाता है. कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स. ओनर के नाम पे 2 अकाउंट होता है. कैपिटल होता है, ड्रॉइंग्स होता है. बाकी कोई अकाउंट नहीं होता. अजय विजय संजय ऐसा ओनर का नाम कभी बिजनेस में आने वाला नहीं. Either you write Ajay's capital, Ajay's drawing, or simply a capital and drawing, then also it's fine. Okay? तो Ajay is the owner, he started the business. हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना. बिजनेस में ओनर ने पैसा डाला. ठीक है. Is that right? So one is cash, one is capital. बहुत बढ़िया. Parv Bora. Tell me the 2 types. Cash real. Cash real. ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं. पर्सनल. कैपिटल ओनर का है ना, तो ओनर इज अ ह्यूमन बीइंग, राइट? हेलो. सो ओनर ह्यूमन है, तो कैपिटल वुड बी पर्सनल. अग्री? ऑल ऑफ यू? हेलो. Tell me, for Gada, rule for real account in general. What is the rule for real account? Debit what comes in, credit what goes Debit what comes in, credit what goes out. यहाँ क्या अप्लाई करोगे आप? कैश. debit. क्यों? कैश बिजनेस में आया. कैश बिजनेस में आया. So debit what comes in. Finally, sorry, debit what comes in. कैश आया बिजनेस में. What is the rule for personal account, Bhavyasha? Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. इसमें क्या अप्लाई करोगे? Credit the giver. क्रेडिट द गिवर. क्योंकि आप इमेजिन कर पा रहे हो, ओनर इज द गिवर. ओनर ने अपने को पैसा दिया. समझ में आ रहा है कि नहीं? यस जिया.
Owner is the giver. So what will apply over here? Credit the giver. Credit the giver. Reason में क्या लिखना है? Cash comes in. Cash comes in and what? Ajay is the giver. Owner is the giver. Yeah, Ajay is the giver. तो भी चलेगा. Owner is the giver. Yeah, Ajay is the giver. Finally, cash debit and capital credit. Cash debit and capital credit. All of you got this? समझ आया सबको? इसी को मॉडर्न में देखो. What is cash in modern? Asset. What is capital? Capital. Capital. Modern में capital is capital. Rule of liability, but it is capital. So cash is asset, capital is capital. What about asset का rule? Increases decreases that. यहाँ पे क्या हो? बढ़ा कि कम? बढ़ा. Cash बढ़ा. Increase हुआ. So debit. What about capital? उन्होंने कैपिटल डाला तो कैपिटल इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ. जितना कैपिटल डालेगा उतना कैपिटल बढ़ेगा. इंक्रीज हुआ. कैपिटल इंक्रीजेस देन क्रेडिट. कैश इंक्रीजेस देन डेबिट. कैपिटल इंक्रीजेस देन क्रेडिट. इज दैट क्लियर? मॉडल फिट हुआ? सबको समझा? नेक्स्ट वन. परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000. परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000. जय ना. What are the two? Cash, real. नाम. अच्छा, कैश अकाउंट एंड परचेज अकाउंट. हाँ, कैश अकाउंट एंड परचेज अकाउंट. आपको बताया था जब भी माल खरीदते हो, गुड्स खरीदते हो, तो कौन सा अकाउंट यूज करना है? परचेज. और गुड्स सेल करते हो तो सेल्स. बराबर है? सो परचेज एंड कैश. ट्रू. व्हाट आर द टाइप्स? जैन. कैश इज रियल. रियल and purchase नॉमिनल. nominal. True. Biggest expense, so that's nominal. Perfect. एकदम करेक्ट. एकदम सही जवाब. नव्या, right? Tell me real account or normal rule. Debit what comes in, credit what goes. Debit what comes in, credit what goes out. यहाँ पे क्या अप्लाई करो? Debit what credit what goes. Credit what goes out. माल खरीदा, पैसा दिया, so cash is going out. So credit what goes out. Am I right? Credit what goes out. इधर होगा. ये हाँ, इसमें देखो. हाँ, वो नीचे पड़ा. बुक्स के नीचे. हाँ, वो पूरा. बताओ मुझे. परचेजेस आर नॉमिनल. ये समझा? वो कैश जा रहा है, राइट? सो क्रेडिट व्हाट गोस आउट. परफेक्ट. धार्मी, परचेजेस नॉमिनल. नॉमिनल का रूल क्या है? Debit all expenses and losses and credit all income and परफेक्ट. यहाँ पे क्या अप्लाई करो? debit all expenses and पक्का. losses. क्यों? क्योंकि परचेज इज अ biggest expense. So debit all expenses and losses. Correct? Debit all expenses and losses. Reason में क्या लिख रहा है? Cash goes out and purchase is The biggest expense. an expense. Simply expense. Biggest, small, सब expense ही है. Purchase is debited and cash is credited. So purchase account debit, cash account credit. Modern बताइए, modern में क्या है purchase? Expense. Modern में purchase is an expense too. What is cash? Asset. तो apply करो. Purchase expense क्या होगा? बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा. जितना माल खरीदोगे उतना expense बढ़ेगा. And cash घटा. पैसा गया तो cash decreases, asset decreases, so credit, and expense increases, so capital. Is it clear? Fit हो रहा है? Perfect fit होगा. Modern भी fit होगा. Traditional भी fit होगा. See the third one. Purchase goods from Rohan rupees 30,000. Purchase goods from Rohan rupees 30,000. Kushi Mehta, right? Yes. Tell me two accounts. Cash account and purchase account. एक अकाउंट तो परचेज है डेफिनेटली, क्योंकि आपने माल खरीदा. व्हाट इज द अदर अकाउंट? Rohan account. कैश की रोहन. Rohan. पहले मुझे बताओ, आर वी बाइंग ऑन कैश और क्रेडिट? हाउ डू, कुछ दिया तो है नहीं, क्रेडिट भी नहीं दिया, कैश भी नहीं दिया, तो क्या क्या डिसाइड करोगे? Assumed cash होता है. ना, अज्यूम कैश कैसे कर सकते हो? अज्यूम क्रेडिट भी कर सकते हो.
तो इसके लिए दो कंडीशंस है. ओके, सब लोग अपनी बुक का लास्ट साइड ले लो और वहां पे लिखो, फॉर अ ट्रांजैक्शन टू बी ऑन क्रेडिट, और if you take the last side of your book, theoretical assumption है. प्रैक्टिकली तो आपको पता होता है, मतलब प्रैक्टिकली पता होता है कैश है कि क्रेडिट है, ये थियोरेटिकल assumption. लास्ट साइड ऑफ योर नोटबुक ले लो, सब लोग उधर लिखो, फॉर अ ट्रांजैक्शन टू बी ऑन क्रेडिट, फॉर अ ट्रांजैक्शन टू बी ऑन क्रेडिट, following two conditions must be satisfied. For a transaction to be on credit, following two conditions must be satisfied. Number one, party's name must be given. Number one, party's name must be given. For a transaction to be on credit, the following two conditions must be satisfied. Number one, party's name must be given. Party's name must be given. Number two, nothing should be mentioned. Nothing should be mentioned about cash / check / NEFT / RTGS, etc. Party's name should be given. Number two, nothing should be specified about cash / check / NEFT / RTGS, etc. तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हुआ ना तो ही ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे होगा, अदरवाइज इट इज ऑन कैश. से फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिया, अभी यहां पे देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन, पार्टी का नाम है, फर्स्ट कंडीशन satisfied. फॉर कैश, फॉर चेक, NEFT, RTGS ऐसा कुछ दिया है नहीं, तो सेकेंड कंडीशन ऑल्सो satisfied. Both the conditions must be satisfied. Only then it's on credit. So now the transaction is on credit. Credit का मतलब पेमेंट इमीडिएटली नहीं हुआ, माल खरीदा लेकिन पैसा दिया नहीं. कैसे आइडेंटिफाई किया आपने? पार्टी का नाम था, कैश के बारे में कुछ, दोनों फुलफिल होना जरूरी. लेकिन मैं आपको ऐसे बोल दूं कि परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन फॉर कैश, देन इट्स ऑन कैश बेसिस, क्योंकि रोहन भले ही आ गया लेकिन फॉर कैश दे दिया है, मतलब इट्स ऑन कैश बेसिस. यहां मैं आपको सिंपली इतना बोलूं, परचेज गुड्स 5000, परचेज गुड्स 5000, तो पार्टी का नाम ही नहीं है, फर्स्ट कंडीशन वायलेटेड, सो इट्स ऑन कैश. समझ आया? फॉर अ ट्रांजैक्शन टू बी ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे होने के लिए दोनों कंडीशन फुलफिल करना जरूरी. एक भी कंडीशन वायलेट हुई तो इट्स ऑन कैश. और ये सिर्फ क्रेडिट और कैश के लिए, मतलब अपने माल क्रेडिट पे खरीदा, माल क्रेडिट पे बेचा, या एसेट क्रेडिट पे खरीदा, एसेट क्रेडिट पे बेचा, उसके लिए हर एक ट्रांजैक्शन में अप्लाई मत करते जाना. क्रेडिट और कैश किसके लिए होता है? जो खरीदा बेचा ऑन क्रेडिट, उसके लिए. माल या एसेट, दो ही चीजों से, समझा? गुड्स या एसेट, क्रेडिट पे परचेज किया है, क्रेडिट पे सेल किया, तभी ये कंडीशन अप्लाई करें, अदरवाइज अप्लाई करने की जरूरत नहीं, परचेज सेल के वक्त ही हो. तो यहां पर परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन, पार्टी का नाम दिया है, यस. फॉर कैश, फॉर चेक दिया है नहीं, बोथ द कंडीशन सेटिस्फाइड, so it's on credit. So what are the two accounts? Purchase and Rohan. Purchase and Rohan. Not cash, but Rohan. Did you understand? Why not cash? So, condition satisfy हो गया, तो क्रेडिट पर है, पैसा देना बाकी है. ठीक है, समझा? जिया जी, जिया शाह. Tell me the types. Purchase nominal. Purchase is nominal. Perfect. Roman personal. वेरी गुड. रोहन इज पर्सनल. ह्यूमन बीइंग है ना बंदा, तो पर्सनल हो गया, है कि नहीं? धैर्य जी बताइए रूल फॉर नॉमिनल. Debit all expenses and losses, credit all income. यहां पे क्या अप्लाई हो गया? Debit all expenses. Perfect. Debit all expenses and losses, because purchase is your biggest expense. True. निशांत, रोहन, Credit the giver. क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, दो ही होता है. यहाँ पे क्या होता है? क्रेडिट द गिवर. आर ऑल ऑफ यू एबल टू इमेजिन? देखो, हमने रोहन से माल
खरीदा, तो रोहन ने हमें माल दिया, तो इज द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर, अग्री? सो रोहन इज द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर. रीजन में क्या रहा? परचेज इज एट एक्सपेंस एंड रोहन इज द गिवर. रोहन को बेचते तो रिसीवर होता. ओके, खरीद रहे हो, यू आर बाइंग, सो इज द गिवर. फाइनली व्हाट डू यू डेबिट? परचेज. यहां से देख लो भैया, परचेज डेबिट हो रहा है एंड रोहन अकाउंट इज क्रेडिटेड. ये जो रोहन अकाउंट है ये परचेज अकाउंट है. परचेज डेबिट होगा, रोहन क्रेडिट होगा. समझ आया? कैश क्रेडिट का रूल्स क्लियर है? नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड्स टू हीना ₹15,000 पार्शली. सोल्ड गुड्स टू हीना, व्हाट आर द टू अकाउंट्स? अच्छा एक सेकंड, इससे पहले इसको मॉडर्न में बताओ. परचेज और रोहन, व्हाट इज परचेज एंड मॉडर्न? परचेज एंड मॉडर्न गाइस इज एन एक्सपेंस. व्हाट इज रोहन? Purchase is an expense, but Rohan is a how liability? क्रेडिटर है कि डेटर है? माल खरीदा ना, तो क्रेडिटर है, तो लाइबिलिटी हुआ. तो परचेज एक्सपेंस एंड रोहन इज लाइबिलिटी. एक्सपेंस का रूल, बड़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट. बड़ा की घटा? बड़ा. जितना माल खरीदोगे उतना एक्सपेंस बढ़ेगा. व्हाट अबाउट रोहन? लाइबिलिटी बढ़ी कि कम हुई? क्यों बढ़ी? उधार बढ़ा ना. जितना माल परचेज करोगे उतना उधार बढ़ेगा, उतना पैसा देने का बढ़ेगा. तो रोहन इंक्रीजेस. रोहन मतलब बंदा नहीं बढ़ा, क्या बढ़ा? लाइबिलिटी बढ़ा. तो पैसा देने का बढ़ गया, राइट? लाइबिलिटी इंक्रीजेस सो एक्सपेंस इंक्रीजेस सो डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीजेस सो उधार बढ़े. नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड्स टू हीना. टेल मी पार्शवी. Sales account, perfect. Hina's account. Why Hina and why not cash? So because the name is mentioned. So basically is it on credit basis or cash basis? Credit. How do you determine on credit or cash? Two conditions. Both the conditions satisfied. What are the two conditions? Party's name should be given. है. For cash, for check? नहीं है. It's on credit. Credit का मतलब माल बेचा, पैसा ताबड़तोड़ मिला नहीं. कृति जी, tell me the rule for tell me the type. Nominal Sales is nominal, perfect, and personal. and Hina is personal, human, right? True. Sales is nominal, Hina is personal, absolutely true. Barabar chip. Yes, Jaini. Tell me the rule for nominal in general. Creditor incomes and gains, debitor expenses and यहाँ पे क्या करो? creditor income. Credit all incomes and gains. Credit all incomes and gains. क्या है भैया? क्योंकि सेल्स आपका क्या है? इनकम है ना? पक्का? हीना इज पर्सनल अकाउंट, राइट? हीना इज पर्सनल. हेड कोठारी पर्सनल का रूल क्या है? Credit the debit the receiver, credit the डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. यहाँ पे क्या अप्लाई? डेबिट द रिसीवर. एब्सोल्युटली राइट. आर ऑल ऑफ यू एबल टू इमेजिन? देखो मैंने बताया, इमेजिन करना सीखो. इमेजिन करना सीख गए तो आधा काम आसान है. हीना कौन है? हमने हीना को माल बेचा कि खरीदा? बेचा. तो हीना कौन है? रिसीव कर रही है, रिसीवर हो गई. खरीद रहे होगे तो गिवर हो गया. या सेलिंग है, शी इज द रिसीवर. तो वही तो देखना है आपको. अब फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेल्स है, is an income. सेल्स इज एन इनकम एंड Hina is the receiver. Hina is the receiver. और फाइनली व्हाट विल यू डेबिट? Debit Hina. डेबिट हीना अकाउंट एंड क्रेडिट Sales. बैठ रहा है दिमाग में? डेबिट हीना एंड क्रेडिट सेल्स. हीना रिसीवर है, सेल्स इनकम है. मुझे बताओ मॉडर्न में क्या है? मॉडर्न में सेल्स क्या है? इनकम है. मॉडर्न में हीना क्या है? एसेट और लायबिलिटी. व्हाई एसेट? Because she is a debtor. Because she is a debtor. Debtor तो पैसा लेना है ना, तो she is an asset, right? अब आपने माल बेचा तो इनकम बढ़ा कि कम? बढ़ा. सेल्स इनकम बढ़ा. जितना माल बेचोगे उतनी इनकम बढ़ेगी, जितना माल बेचोगे उतनी इनकम बढ़ेगी.
So sales credit income बढ़ी. What about debtor? Asset बढ़ा कम हुआ. जितना माल सेल करोगे उतना डेटर क्यों बढ़ेगा? उतना पैसा लेने का बढ़ेगा. बाकी है 10,000 का बेचोगे 10,000 लेना, 50,000 का बेचोगे 50,000 लेना है, 1 लाख का बेचोगे. समझ में आ रहा है ये चीज? जितना सेल करोगे उतना डेटर बढ़ेगा. एसेट बढ़ा तो डेबिट. हेलो, तो डेटर कम कब होगा? जब पैसा आ जाए. जब पैसा आ जाए. समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनो. क्रेडिटर और डेटर. क्रेडिटर बढ़ेगा कब? When will your creditor increase? So when you buy the goods on credit. जब परचेज करोगे तो क्रेडिटर बढ़ेगा, है ना? और जब सेल करोगे तो डेटर बढ़ेगा. समझ आ रहा है? हेलो, परचेज करोगे तो क्रेडिटर बढ़ेगा, सेल करोगे तो डेटर बढ़ेगा. तो क्रेडिटर कम कब होगा? जब पैसा दे दोगे. और डेटर कम कब होगा? जब पैसा आ जाएगा. नो मोर डेटर. समझा? सर ये रीजन में हम लोग कैश कम से नहीं ले सकते. इनकम के बदले किसमें लास्ट फोर का किसमें? सेल्स इनकम के बदले कैश कम से नहीं. अरे कैश कहाँ आया है? दिस इज नॉट क्रेडिट. कैश ना आया ना गया. तुमने माल बेचा है, पैसा लेना तो बाकी है ना? कैश होगा तो लिख सकते हो कैश के साथ. सेल्स है तो सेल्स का सेल्स. और फिर दिस इज नॉट क्रेडिट. कैश है नहीं यहाँ पे, फ्यूचर डेट पे आएगा. ओके, बढ़े आगे. कैश क्रेडिट का रूल समझ में आ रहा है? पार्टी का नाम होना चाहिए, कैश के बारे में कुछ नहीं. ठीक है? ऐसे बोल दिया. सोल्ड गुड्स फॉर कैश. व्हाट आर द टू अकाउंट्स? Cash account and sales account. All of you got this? Hello. This time it's on cash. Clear cut specified, right? What are the types? Cash real and sales nominal. Perfect. Perfect. Cash real and sales nominal. True per Sukhiya. Tell me rule for real account. Credit what comes in, debit what comes in. Debit what comes in. Debit what comes in, credit what goes out. उल्टा रूल, उल्टा एंट्री, उल्टा सब जीरो. टपक गॉन. यहां पे क्या अप्लाई करोगे? सोच लो भाई. Debit what comes in. माल बेचा, पैसा आया. आया ना? इमेजिन करो पैसा आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन. डेबिट व्हाट कम्स इन. दी अलर्ट. नजर हटी, दुर्घटना घटी. सेल्स इज इनकम, राइट? नॉमिनल, राइट? पीछे क्या नाम है लास्ट में? ध्रुविन, राइट? ध्रुविन सर.